student, I am going to start lesson 6. The name of the lesson is How Mowgli Joined the Pack. Dear student, आपने मोगली के बारे में सुना भी होगा और मोगली के कई सीरियल आपने टेलीविज़न पर वॉच भी किए होंगे। अब इसके बारे में और अच्छे से रीड करेंगे, आप इसको ध्यान से सुनेंगे। Most of you must have heard of Mowgli, the little boy who was brought up by wolves. Do you know how he came to be a part of the wolf pack? Read and find out. A couple of wolves lived with their 4 cubs in a cave in the Seoni Hills. One evening, Father Wolf woke up from his day's rest and stretched his paws to get rid of the sleepy feeling and said to Mother Wolf, "It is time to hunt again. Good luck be with you, O chief of the wolves," whined the mischievous and terrible jackal Tabaki as he entered the cave. Tabaki then upset Father and Mother Wolf by saying spitefully that Sher Khan, the tiger living near the Venganga river, had shifted his hunting grounds to the hills. Father Wolf said angrily, "By the laws of the jungle, Sher Khan has no right to change his quarters without due warning. He will frighten every head of game within 10 miles, and I have to kill 4 these days." आप में से ज़्यादातर ने मोगली के बारे में सुना होगा। एक छोटा लड़का जिसका पालन पोषण भेड़ियों के द्वारा हुआ था। क्या आप जानते हैं कि वह भेड़ियों के झुंड में कैसे हिस्सा बन गया? अब हम पढ़ते हैं और उसके बारे में जानते हैं। एक भेड़िया का जोड़ा था जो अपने 4 बच्चों के साथ सियोनी हिल्स की गुफा में रहता था। एक दिन शाम को फादर वुल्फ आराम करते करते जाग गए। उसने अंगड़ाई ली। उसने मदर वुल्फ से बोला, "अब शिकार का समय हो गया है।" जेकल तबाकी गुफा में आता है और कहता है कि ओ भेड़ियों के सरदार, भाग्य तुम्हारा साथ दे। तबाकी बताता है कि शेर खान जो वेन गंगा रिवर पर रहता था, अब उसने अपना शिकार का मैदान हिल्स पर शिफ्ट कर लिया है। भेड़िया यह जानकर दुखी हो जाता है। फादर वुल्फ को गुस्सा आ जाता है। जंगल के जो नियम है उसके अनुसार शेर खान को बिना किसी चेतावनी के अपनी जगह को बदलने का कोई अधिकार नहीं है। अब वो 10 मील की दूरी वाले लोगों को डराएगा, इसलिए मुझे शेर खान को 2 दिन में मारना होगा। मदर वुल्फ सेड, "शेर खान हैज बीन lame in 1 foot from birth. That is why he has killed only cattle. The villagers of the Venganga belt are very angry with him. They will scour the jungle for him when he is far away, and we will have to run to safety when the grass is set alight." Tabaki went away to join Sher Khan in the hunt. Father Wolf heard the dry, angry, snarly sing-song whine of frustrated tiger and said, the fool, to begin a night's work with that noise. Does he think our buck are like his fat Venganga bullocks? Hush, it is neither bullock nor buck. He hunts tonight, but man," said Mother Wolf as she heard Sher Khan's savage howl. But the law of the jungle forbade every beast to kill and eat men because man killing led to retaliatory hunting of wild animals and men eating mad beast mangly and toothless. Sher Khan was howling menacingly because he had burned his feet by jumping as at a woodcutter's campfire. Tabaki was with him. Soon the bushes rustled a little, and Father Wolf saw in front of him a naked brown baby who could just walk. He looked up into Father Wolf's face and laughed. "Is that a man's cube?" said Mother Wolf. "I have never seen one. Bring it here." Father Wolf pushed the little baby towards the 4 cubs. Father and Mother Wolf were delighted to see him sitting fearlessly with their cubs and sharing a meal with them. मदर वुल्फ कहती है, शेर खान जो है वो जन्म से ही लंगड़ा है, इसलिए वह बस पशु पक्षियों का ही खा सकता है, और जो वेनगंगा बेल्ट पर रहने वाले गांववासी
शेर खान से बहुत ही नाराज हैं, इसलिए वो उसको पूरे जंगल में उसे खोज डालेंगे और जब वो दूर होगा तो घास में आग लगा देंगे और यहाँ से दूर निकल लेंगे। तबाकी शिकार के लिए शेर खान के साथ चला गया। फादर वुल्फ और शेर खान की आवाज़ सुनता है और कहता है, ये जो टाइगर है, जो चिल्ला रहा है, जो दहाड़ रहा है, वह मूर्ख है, जो रात शुरू होने से पहले अपना काम यानी आवाज़ लगाना शुरू कर रहा है। और वो सोचता है कि हमारे जो हिरन है, जो वेनगंगा के बुलक की तरह मोटे हैं, उसकी आवाज़ से ऐसा लग रहा है कि आज वो ना तो बुलक का शिकार करेगा ना बक का। ऐसा मदर वुल्फ ने कहा। शेर को दहाड़ने की आवाज़ सुनकर, लेकिन जो जंगल का नियम है उसके अनुसार कोई भी जानवर किसी भी मनुष्य का शिकार नहीं कर सकता। यदि कोई पशु मनुष्य का शिकार करेगा तो उस पशु का भी शिकार होगा। शेर खान जो है वो दर्द से करा रहा था, क्योंकि उसका जो पैर है वो एक वुड कटर के कैंप में जब वो आग पर छलांग लगा रहा था, उसका पैर जल गया था और उस जलन के कारण शेर खान दर्द से करा रहा था। तबाकी भी उसके साथ था। तुरंत ही झाड़ियों से आवाज आती है। जैसे ही झाड़ियों में से एक इंसान का बच्चा सामने दिखता है फादर वुल्फ को, और वो बच्चा उसे देखकर हंसता है। मदर वुल्फ कहती है कि क्या ये मनुष्य का बच्चा है? मैंने ऐसा बच्चा कभी नहीं देखा, इसे यहाँ लाओ। फादर वुल्फ उस बच्चे को अपने बच्चों के साथ छोड़ देते हैं। फादर और मदर वुल्फ बहुत खुश होते हैं अपने बच्चों के साथ मनुष्य के बच्चों को खेलते और खाते देखकर। At that very moment, Sher Khan entered the cave with Tabaki and demanded the little baby as his quarry. The wolves are free people, said Father Wolf. They take orders from the head of the pack and not from any stripped cattle killer. The man's cave is ours to kill if we choose. When Sher Khan insisted on getting the baby as his rightful quarry, Mother Wolf sprang forward and said, the man's cub is mine, lame one, he shall not be killed. He shall live to run and hunt with the pack, and in the end, look you, hunter of little nagged cubs, he shall hunt you. Now go away, or you will go back lamer than you came into the world. Sher Khan did not like to stand up against the furious mother wolf in her cave and went away saying, each dog bark in his own yard. We will see what the pack council will say to this fostering of a man's cub. The cub is mine, and to my teeth he will come in the end. और तुरंत ही शेर खान आता है तबाकी के साथ, और जो वो छोटा बच्चा है उसको शिकार के लिए मांगता है। फादर वुल्फ ने कहा, जो भेड़िया होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं और वे केवल अपने दल के समूह के मुखिया की ही बात मानते हैं, और वह किसी धारीदार सीए किलर की बात नहीं मानते हैं। हमें लगेगा तो हम इसे मार देंगे। जब शेर खान आग्रह करता है कि वो मनुष्य का बच्चा मुझे दे दो, मदर वुल्फ छलांग लगाकर आ जाती है और बोलती है कि जो मनुष्य का बच्चा है वो मेरा है और वो मारा नहीं जाएगा। वो जिएगा और भागेगा, दौड़ेगा, दौड़ लगाएगा और हमारे साथ शिकार करेगा, और अंत में वह तुम्हें मारेगा। अब तुम यहाँ से चले जाओ। शेर खान को वहाँ खड़े रहना अच्छा नहीं लगा। मदर वुल्फ बहुत गुस्से में थी और शेर खान वहाँ से गुस्से में यह कहकर चला जाता है कि हर कुत्ता अपनी जगह शेर होता है। हम देखते हैं कि पैक काउंसिल इस बच्चे के बारे में क्या निर्णय लेता है, और जो ये मनुष्य का बच्चा है वह मेरा ही है और अंत में मेरा ही शिकार बनेगा। The law of the jungle laid it down clearly that a wolf might live away from the pack after his marriage, but he must bring his cubs to the pack council in order to introduce them to the other wolves. After that introduction,
The cubs were free to run wherever they liked, and until they had killed their first buck, no excuse was accepted if a grown up, grown up wolf killed one of them. The punishment was death where the murder could be found. Father Wolf therefore took the cub and Mowgli to the pack council meeting held on a hilltop under the chairmanship of Akela, the lone wolf. He pushed Mowgli into the center where he sat laughing and playing with pebbles. Balu, the brown bear who taught the law of the jungle to the wolf cubs, and Bagheera, the black panther, spoke for Mowgli and asked the pack council to permit him to run and hunt with the pack. Bagheera also proposed to buy Mowgli's life for the price of a newly killed bull, and everyone accepted his proposal. Sher Khan rode still in the night, for he was very angry that Mowgli had not been handed over to him. Hear or well, said Bagheera, for the time will come when this nag thing will make you roar to another tune, or I know nothing of men. It was well done, said Akela. Men and their cubs are very wise. He may be a help in time. And that is how Mowgli entered the Seoni wolf pack for the price of a bull and on Balu's good word. जंगल के नियम अनुसार यह तय हो चुका था कि जो वुल्फ है वो शादी के बाद पेक से बाहर रहेंगे, लेकिन जब उनके बच्चे होंगे तो वे उन्हें पेक काउंसिल में सभी से परिचित कराने ला सकते हैं, और इस परिचय के बाद वे बच्चे कहीं दौड़ सकते हैं और आ जा सकते हैं, और कोई एक्सक्यूज नहीं सुना जाएगा अगर कोई बड़ा भेड़िया उन्हें मार देता है तो। अगर कभी कहीं मर्डर पाया गया तो उसका पनिशमेंट मृत्यु या डेथ होगी। फादर वुल्फ अपने बच्चों और मोगली को लेकर पेक काउंसिल की मीटिंग में गए, जो कि पहाड़ी की शिकार पर अकेला नामक भेड़िए की अध्यक्षता में हो रही थी। उसने मोगली को बीच में बैठा दिया, जहां वो हंसता रहा और पत्थर से खेलता रहा। बालू, जो कि एक भालू था, वह भेड़ियों के बच्चों को जंगल के नियम बताता है। बालू और बगीरा ने पेक काउंसिल से यह अनुमति मांगी कि मोगली जो है उसे भेड़ियों के बच्चों के साथ दौड़ने और शिकार करने की अनुमति दी जाए। बगीरा ने मोगली के जीवन को तुरंत मारे गए एक सांड के बदले खरीदने का प्रस्ताव रखा, जिसे सभी ने स्वीकार कर लिया। और शेर खान को मोगली नहीं मिला तो उसने जोर जोर से दहाड़ना शुरू कर दिया। बगीरा शेर खान को कहता है कि ये जो बच्चा है वह जब तुम्हारा शिकार करेगा तब तुम्हारे दहाड़ने की आवाज़ बदल जाएगी। इससे ज़्यादा तो मैं मनुष्य के बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। अकेला ने कहा, बहुत अच्छा हुआ। मनुष्य और उनके जो बच्चे होते हैं वे बहुत बुद्धिमान होते हैं, वो कभी हमारे काम आ सकते हैं। इस तरह मोगली ने एक बेल की कीमत पर और बल्लू के अच्छे शब्द पर सियोनी वुल्फ पैक में प्रवेश किया। अब आपको ये स्टोरी समझ में आ गई होगी मोगली की कि किस तरह से वो पैक में पहुंचा।